about mitosis, meiosis, haploid cell and diploid cell. So let's start. Let us see what is cell division. Consider this is a cell, again cell membrane. As always, cytoplasm in the center, there is a nucleus. Inside the nucleus, what is there? Chromatin network. Okay, this is a cell. Or else we can say this is a parent cell. Parent cell क्यों बोला मैंने इसको? Because it is going to divide now. Okay, so ये divide होने वाला है. Divide होने वाला है का मतलब है ये अभी इसके जैसे two equal cells बनाने वाला है. Okay, so this will undergo cell division होगा, इसका division होगा and similar to this egg cell, ये egg cell बना and this one cell. These are called daughter cells. So one parent cell will produce two daughter cells. This is called cell division. Now cell division is of two types. Let us see दो टाइप के क्यों है cell division. Now take one example. I will give you one example. Look at this cell. I am drawing one cell, nucleus. और देखो मैंने nucleus में क्या लिखा है? I have written 2N. That means this cell is, what is this cell? Haploid or diploid? Diploid, right? So this is one cell, diploid cell. Okay, this is going to divide now. Can I say this is a parent cell? Yes. So I can write parent का diploid cell है ये. Okay. Now this cell will divide and ये सेल ने अपने ही जैसे दो सेल्स बनाए हैं. अभी हमने देखा ये दो सेल्स, अगर इफ दिस इज अ पेरेंट सेल, these two cells are called as daughter cells, right? Daughter cells बनाए. What is the ploidy of parent cell and daughter cells? Ploidy means how many sets of chromosome. Here you can see two sets of chromosome. मतलब parent cell क्या है? Diploid है. तो daughter cells भी तुमको क्या दिख रहे हैं? Diploid. This means एक सेल था parent cell जो क्या था? Diploid था. उसने अपने जैसे टू डॉटर सेल्स बनाए. बट डॉटर सेल्स कैसे है? वो भी कैसे है? डिप्लॉइड. मतलब ऐसे नहीं हुआ कि 2N सेल था और उससे 2N बन गए, N एंड N, 2N से. इट इज नॉट लाइक दिस कि एक 2N सेल था और इसने एक N बनाया एंड बिकॉज N प्लस N 2N ना. नो, one 2N cell, diploid cell, parent diploid cell undergoes cell division and makes two diploid daughter cells. बिल्कुल exactly इसके जैसे ही दो सेल्स इसने बनाए हैं. This type of division जिसमें exactly equal daughter cells जो है बिल्कुल parent जैसा ही होता है, this type of division is called as equational division. What is it called? Equational division. Equational division. क्यों equational division? क्योंकि equationally divide हुआ है. 2N से दो 2N बने हैं, right? Equational division. And it is also called as mitosis. So एक टाइप का सेल डिवीजन हमने देखा. What we have seen? Mitosis. Mitosis is also called as equational division. Mitosis में क्या होता है? One parent cell which is diploid will produce two daughter cells which are also diploid. मतलब डिवीजन क्या हुआ है? इक्वेशनल हुआ है. यहाँ पे हाफ डिवीजन नहीं हुआ, सेम दो सेल्स बने हैं. इक्वेशनल डिवीजन. Now let us take again one cell. See what I have written, 2N means ये क्या है? डिप्लॉइड सेल है.
दिस इज डिप्लॉयड सेल एंड ये सेल अभी डिवाइड होने जा रहा है, बट दूसरे टाइप से डिवाइड होने वाला है. सेकेंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन वी आर गोइंग टू सी. सो ये डिवाइड होने वाला है. दैट इज व्हाई शैल आई कॉल दिस पेरेंट सेल? यस, बिकॉज इट इज गोइंग टू मेक डॉटर सेल. सो पेरेंट सेल कैसा है? डिप्लॉयड है. नाउ इट इज गोइंग टू अंडरगो सेल डिवीजन, बट ऐसा सेल डिवीजन नहीं, इक्वेशनल डिवीजन नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिवीजन. लेट अस सी. ये जो पेरेंट सेल है डिप्लॉयड है, it undergoes cell division and see what it has made. It has made 4 cells. 4 cells बनाए हैं इसने, 2 cells नहीं. It has made 4 cells. And how are they 4 cells? What is the ploidy of 4 cells? What is the ploidy of all these cells? Haploid. So diploid parent cells sometimes undergo different सेल डिवीजन देन दिस माइटोसिस. दूसरे टाइप का सेल डिवीजन होता है जिसमें पेरेंट सेल जो डिप्लॉयड है वो सेल डिवीजन से डॉटर सेल्स को बनाए हैं. बट हाउ आर द डॉटर सेल्स? हाउ आर द डॉटर सेल्स? हैप्लॉयड. हाफ है ना, हैप्लॉयड. सो 2n से कितने n बने? 4n बने. सो दिस वाज इक्वेशनल डिवीजन. दिस वाज इक्वेशनल डिवीजन. 2n डिप्लॉयड सेल मेड 2 डिप्लॉयड सेल्स. ये 2n था पेरेंट सेल और डिप्लॉयड सेल ने कौन से सेल्स बनाए? हैप्लॉयड, हाफ. सो दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन. व्हाट इट इज कॉल्ड? रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शन हुआ है, इट इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन. एंड अदर नेम फॉर रिडक्शनल डिवीजन is meiosis. So how many types of cell division are there? Cell divide होता है, but 2 types of cell division are there. Sometimes cell will undergo this type of division. What it is called? Equational division or mitosis, जिसमें 1 diploid parent cell will make 2 diploid daughter cells. And second type of division कौन सा है? मियोसिस और रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें पेरेंट सेल जो डिप्लॉयड है विल मेक 4 हैप्लॉयड सेल्स. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस? इफ आई आस्क, सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस? यू कैन इजीली टेल नाउ. माइटोसिस इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन. इन माइटोसिस, diploid parent cell will make 2 diploid daughter cells. In meiosis, diploid parent cell will make 4 daughter haploid cells, right? And many more differences are there. Those we will see now. Now, in our body, दोनों टाइप के सेल डिवीजन होते हैं. माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन एज वेल एज मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन. बट लेट अस सी माइटोसिस कहाँ होता है एंड क्यों होता है, एंड मियोसिस कहाँ होता है, क्यों होता है. सो लेट अस फर्स्ट स्टडी माइटोसिस इन डिटेल. वेयर इट हैपेंस? माइटोसिस. नाउ टेक योर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, दिस इज यू व्हेन यू वेर इन क्लास. नाउ यू आर इन 10th class, right? Just give an exam of 10th class. When you were in 9th class, so you were like this. Okay. Your height was this much. Okay, when you were in 9th or 8th class. Now after few days, अभी आज की डेट में आपकी हाइट थोड़ी बढ़ गई है and your height is like this now. So आपके बॉडी में क्या हुआ है जिससे आपकी हाइट बढ़ गई? मतलब हम क्या बोलते हैं कि हाइट बढ़ गई है. क्यों बढ़ गई है? बिकॉज क्या हुआ है? ग्रोथ हुआ है, राइट? आपका क्या हुआ है? ग्रोथ हुआ है, इसीलिए हाइट भी बढ़ी है एंड वेट भी बढ़ा है. बट वी आर कंसिडरिंग एग्जांपल ऑफ हाइट. आपकी हाइट क्यों बढ़ी है बताओ? इतनी थी आपकी हाइट क्लास 8 में एंड क्लास 10 में इतनी अगर हाइट है तो व्हाई? व्हाट इज द रीजन फॉर इंक्रीजिंग हाइट? ग्रोथ हुआ है आपका, राइट? एंड ग्रोथ क्यों हुआ है? क्योंकि आपके बॉडी के बहुत सारे सेल्स डिवाइड हुए हैं. एक सेल ने कितने सेल्स बनाए हैं? 2 सेल्स बनाए हैं.
आपके बॉडी में बहुत सारे सेल्स इंक्रीज हुए हैं एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सेल नंबर क्या हुआ है, आपका हाइट बढ़ गया, राइट। सो इंक्रीज इन सेल नंबर, एक सेल था 2n, उसने 2 सेल्स बनाया। ऐसे आपके बॉडी के बहुत सारे सेल्स में सेल्स डिवाइड हुए हैं एंड माइटोसिस हुआ है, राइट। आपकी बॉडी में क्या हुआ है, माइटोसिस हुआ है। सो माइटोसिस हेल्प्स इन, टेल मी, माइटोसिस हेल्प्स इन ग्रोथ, राइट, इंक्रीजिंग हाइट, इंक्रीजिंग वेट। तो अगर आपकी हाइट बढ़ रही है मतलब आपके बॉडी में क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। मतलब कौन सा डिवीजन हो रहा है, इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है। एक डिप्लॉइड सेल कितने सेल बना रहा है, 2 डिप्लॉइड सेल बना रहा है। व्हाट इज द रिजल्ट, रिजल्ट इज ग्रोथ। सो माइटोसिस का सबसे पहला सिग्निफिकेंस, मतलब माइटोसिस कहाँ हेल्प कर रहा है हमारे बॉडी में, कहाँ पे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस माइटोसिस का है ग्रोथ। इट हेल्प्स इन ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ बॉडी, ठीक है। नाउ और एक जगह पे माइटोसिस होगा हमारे बॉडी में, कहा, लेट मी टेल यू। सी माई हैंड, लुक एट माई हैंड। अगर मेरे हैंड को यहाँ पे इंजुरी हुई है, इंजुरी हो गई है, खरोच हो गई है, राइट, खरोच आ गई, तो कुछ दिन बाद क्या वो खरोच इंजुरी वैसी ही रहेगी, नो, इट विल हील। पूरी जो स्किन यहाँ पे जो डैमेज हो गई थी बिकॉज ऑफ इंजुरी, पूरा स्किन वहां पे नया स्किन आ जाएगा। कैसे आ गया न्यू स्किन, बिकॉज वहां पे क्या हुआ है, सेल डिवीजन हुआ है, वहां के सेल्स ने इक्वेशनल डिवीजन किया है एंड मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, माइटोसिस हुआ है एंड बिकॉज ऑफ माइटोसिस माई इंजुरी गॉट हील्ड। तो माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन, यहाँ पे बहुत सारा सेल डिवीजन हो गया एंड मेरी इंजुरी हील हो गई। सो माइटोसिस हेल्प्स इन ग्रोथ एज वेल एज व्हाट वी कैन से हीलिंग of wounds, of healing of injury, right? So significance of mitosis, mitosis helps in growth of your body, it will make you tall, okay, and secondly it will help healing of injury। जहाँ पे भी सेल्स इंज्योर हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, वहां के सेल्स रिप्लेस हो जाएंगे बिकॉज ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस ऐसा पावर है सेल के पास जिससे एक सेल उसके जैसे 2 सेल्स बना सकता है, इक्वेशनल डिवीजन। गॉट इट, एवरीथिंग क्लियर अबाउट माइटोसिस, ओके। नाउ मूव ऑन टू मियोसिस। नाउ मियोसिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, वेर इट डज हैपन, कहाँ होता है हमारे बॉडी में। ये तो हमको पता चल गया कि पूरे बॉडी में ग्रोथ में हेल्प करता है, इंजुरी हीलिंग में माइटोसिस हेल्प करता है, ठीक है। सो मियोसिस जो है, जो रिडक्शनल डिवीजन है, ये सेल डिवीजन कहाँ होता होगा, हमारे कौन से बॉडी पार्ट में होता है, ये एक स्पेसिफिक पार्ट में होता है। ये जो माइटोसिस है इट विल हैपन थ्रू आउट अवर बॉडी, बट जहाँ पे इंजुरी है वहां होगा, या फिर थ्रू आउट अवर बॉडी इट विल हैपन, इट कैन हैपन। बट ये जो मियोसिस है इट हैपन्स ओनली इन गोनाड्स। मियोसिस जो है वो हमारे बॉडी में सिर्फ गोनाड्स में होगा, ये टाइप का सेल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। नाउ व्हाट इज गोनाड्स, व्हाट आर गोनाड्स, यू पीपल ऑलरेडी नो। गोनाड्स मीन्स मेल्स में इट इज टेस्टिस एंड बताओ फीमेल में इट इज ओवरी, राइट, ओवरी। सो मियोसिस में क्या होगा, मेल का जो टेस्टिस का सेल है वो एक्चुअली 2n ही है, डिप्लॉइड ही है, बट इट विल अंडरगो मियोसिस एंड इट विल मेक 4 हैप्लॉइड सेल्स, और ये 4 हैप्लॉइड सेल्स को हम बोलेंगे स्पर्म्स और मेल गैमेट्स। नाउ यू कम टू नो मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं, कैसे बनेंगे मेल गैमेट्स। मेल्स में टेस्टिस के सेल्स कैसे हैं, डिप्लॉइड है, क्योंकि हमारे सारे बॉडी सेल्स डिप्लॉइड है, और वो जो डिप्लॉइड सेल है टेस्टिस का, इट विल अंडरगो व्हिच डिवीजन, मियोसिस। यहाँ पे मियोसिस होने वाला है एंड
ये जो सेल है ये हाफ हैप्लॉइड सेल बनाएगा, जो स्पर्म्स है मतलब मेल गैमेट। सिमिलर थिंग विल हैपन इन फीमेल ओवरी। फीमेल ओवरी में फीमेल के ओवरी के जो सेल्स है वो सारे सेल्स ऑब्वियसली 2n है, डिप्लॉइड है, बट दे विल ऑल्सो अंडरगो मियोसिस एंड दे विल ऑल्सो मेक 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, और ये सेल्स को हम बोलेंगे ओवम और एग, राइट, एग। सो sperm is male gamete and ovum or egg is female gamete. Female gamete. So tell me, अगर माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। ऐसा सेल डिवीजन होगा तो हमारा क्या होगा? ग्रोथ होगा या फिर इंजुरी हील होगी। बट ऐसा सेल डिवीजन हमारे बॉडी में कहाँ होता है? रिडक्शनल डिवीजन कहाँ होता है? एट 2 places. In males it happens in testes and in female it happens in ovary. Testes and ovary are called together called as gonads. Testes में what will testis cell do? Testis cell, diploid cell will make 4 haploid cells which are called as sperms or male gamete, and female में ovary cell will undergo meiosis and will make 4 haploid cells which are called ovum or egg, and they are also called as female gamete. So meiosis का significance, only one significance, helps in gamete formation. and कहाँ होता है? कौन से बॉडी पार्ट में होता है meiosis? हमारे गोनाड्स या फिर reproductive parts. I think everything is clear now about mitosis and meiosis. We will again see the difference between meiosis. I am repeating again. Mitosis is called equational division, whereas meiosis is called reductional division. In mitosis, diploid parent cell will make 2 diploid daughter cells. In meiosis, diploid parent cell will make 4 haploid daughter cells. एक माइटोसिस कहाँ होता है? कौन से सेल्स में होता है? सोमैटिक सेल्स और बॉडी सेल्स, सारे बॉडी सेल्स में माइटोसिस होता है। बट वेयर डज दिस हैपन्स? मियोसिस हैपन्स इन गोनाड सेल्स. गोनाड सेल्स मीन्स इन मेल्स टेस्टिस एंड इन फीमेल्स ओवरी. माइटोसिस हेल्प्स इन ग्रोथ या फिर रिपेयर. अभी मैंने बताया इंजरी को रिपेयर करने में हेल्प होता है एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी. एंड मियोसिस हेल्प्स इन गैमेट फॉर्मेशन. कौन से गैमेट? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. हाउ आर द गैमेट्स? गैमेट्स आर हैप्लॉइड. ओके, सो दैट्स इट. Let us take an example to understand meiosis in detail. और अच्छे से समझ लेते हैं meiosis क्यों होता है. मेल्स में मैंने अभी बताया टेस्टिस एंड फीमेल्स में ओवरी में होता है. ओके, सो कंसीडर दिस इज वन टेस्टिस सेल. ये टेस्टिस का सेल है एंड दिस इज ओवरी सेल. ये एक ओवरी का सेल है. लुक एट बोथ सेल्स. दोनों सेल्स कैसे हैं? डिप्लॉइड है, क्योंकि हमको पता है हमारे बॉडी सेल्स डिप्लॉइड होते हैं, सारे बॉडी सेल्स डिप्लॉइड होते हैं ओरिजिनली. सो मेल टेस्टिस का सेल ये डिप्लॉइड, ये फीमेल ओवरी का सेल डिप्लॉइड. नाउ अगर जस्ट इमेजिन कि मियोसिस नहीं हो रहा है, सपोज मियोसिस नहीं हो रहा है, तो व्हाट विल हैपन? ये जो मेल का टेस्टिस का सेल है ये फ्यूज होगा फीमेल के ओवरी के सेल के साथ एंड 2n + 2n क्या होगा? 4n. ठीक है, एंड दिस 4n विल बी क्या होगा? जाइगोट. और तुम लोगों ने लोअर क्लासेस में स्टडी किया होगा जाइगोट जो होता है वो जाइगोट, और ये एक सेल है. जाइगोट इज अ सिंगल सेल. ये डिवाइड होगा. अब एक सेल से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, और जाइगोट से पता है एक ऐसे बॉल बनेगा बहुत सारे सेल्स का, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो. बट ये जो एम्ब्रियो रहेगा ना, इसमें सारे सेल्स कैसे रहेंगे? 4n रहेंगे, राइट. और फिर एम्ब्रियो से अगर अब हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो एम्ब्रियो से बनेगा न्यू बेबी. ओके, बेबी बन रहा है. एंड बताओ बेबी के बॉडी सेल्स क्या रहेंगे? फिर सारे बॉडी सेल्स 4n रहेंगे.
सो विल इट बी अ ह्यूमन बेबी? क्योंकि ह्यूमन का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ ह्यूमन सेल? ह्यूमन का प्लॉइडी क्या है? ऑलवेज 2n. हमारे बॉडी सेल्स 2n है ना, और कोई बेबी बना है और जिसका बॉडी सेल जो है, जिसका प्लॉइडी 4n है, तो क्या वो ह्यूमन बीइंग रहेगा? नो, इट वोंट बी ह्यूमन बीइंग, राइट? कुछ फॉर्मूला है ना हमारा फिक्स की वी नीड टू कीप 2n, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है. यहाँ पे तो 4n है ना, मतलब ये बेबी के बॉडी में कितने सेट्स आ गए क्रोमोसोम्स के? 4 सेट्स आ गए क्रोमोसोम के. सो दिस इज रॉन्ग फॉर्मूला, राइट? सो you will come to know importance of meiosis now. I will again explain. So again we will see importance of meiosis. अभी आपके ध्यान में आएगा कि क्या है importance meiosis का. See, this is a testis cell which is diploid. This is ovary cell which is also diploid. ये this will undergo meiosis और इन्होंने क्या बनाए? 4 haploid cells बनाए जिनको हम बोलेंगे sperms. एंड दे आर हैप्लॉइड, या फिर इसको मेल गैमेट बोलेंगे हम इनको. एंड ये जो ओवरी है, ओवरी ने भी 4 सेल्स बनाए हैं विच आर हैप्लॉइड, और दीज आर ओवा या फिर एग बोलेंगे हम इसको, एंड फीमेल गैमेट बोलेंगे. सो दीज आर फीमेल गैमेट्स, दीज आर मेल गैमेट्स. नाउ गैमेट्स आर हाफ, वी नो. अब ये जो एक स्पर्म है, ये जो एक स्पर्म है एंड ये जो एक ओवम है, इनका फ्यूजन हो जाता है सपोज, तो व्हाट वी विल गेट 2n, एंड 2n को हम लोग बोलते हैं जाइगोट. फर्टिलाइजेशन बोलते हैं एक्चुअली, फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन हुआ है एंड क्या बना है? जाइगोट बना है. एंड अभी जाइगोट नो डिवाइड होगा, बहुत सारा माइटोसिस होगा इसमें, इक्वेशनल डिवीजन होगा, एंड जाइगोट से एक ऐसे बॉल बनेगा जिसमें बहुत सारे सेल्स रहेंगे. जाइगोट वाज 1 सेल, राइट? अब जाइगोट में बहुत सारे सेल्स आ गए हैं, इसका इक्वेशनल डिवीजन हुआ है, एंड ये सारे सेल्स पता है क्या है? 2n है. ये सारे सेल्स 2n है, एंड दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो. एंड एम्ब्रियो से बनेगा बेबी. इफ आई कंसिडर ह्यूमन बेबी की बात कर रही हूँ, 2n, एंड बेबी के बॉडी के सारे सेल्स कैसे रहेंगे? 2n डिप्लॉइड. सो नाउ यू, अभी आपको पता चला मियोसिस का सिग्निफिकेंस. अगर यहाँ पे मियोसिस नहीं होता है, ये हाफ नहीं होता है, तो हाफ का फ्यूजन नहीं होता है, तो देन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 4n, 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे. सो दैट पर्सन विल नॉट बी इधर ह्यूमन बीइंग, और देयर विल बी सम डिफेक्ट, लॉट्स ऑफ डिफेक्ट इन दैट पर्सन. जो 4n है, जिसके पास 4 सेट्स है क्रोमोसोम के. बट दिस शुड नॉट हैपन. इसीलिए क्या होने वाला है? मियोसिस होने वाला है. सो ऑलवेज टेस्टिस में, मेल्स के टेस्टिस में मियोसिस होगा और क्या बनेगा? मेल गैमेट. एंड फीमेल के ओवरी में मियोसिस होकर क्या बनेगा? फीमेल गैमेट. दोनों गैमेट्स क्या है? हाफ है. n+n, 2n. 2n इज जाइगोट, एंड जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के सारे सेल्स 2n, एंड एम्ब्रियो से बनेगा बेबी, एंड बेबी से के सारे सेल्स 2n है. एवरी इंडिविजुअल, आप लोग, मैं, हम लोग सब हमारे लाइफ की शुरुआत में क्या थे? जाइगोट. वी वेर सिंगल सेल एट द बिगिनिंग ऑफ आवर लाइफ. हमारे मॉम का ओवम एंड डैड का स्पर्म फ्यूज हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, एंड क्या बना? जाइगोट. नाउ यू नो माइटोसिस हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ योर बॉडी एंड इंजुरी हीलिंग, एंड मियोसिस हेल्प्स इन गैमेट फॉर्मेशन. और माइटोसिस बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, बट मियोसिस कहाँ होगा? गोनाड्स में होगा या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होगा, राइट? सो नॉट इन ह्यूमंस, सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं. इफ यू कंसिडर एग्जांपल ऑफ प्लांट ऑल्सो, एक प्लांट भी है, उसका भी ग्रोथ हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है? माइटोसिस. उसका जो ओरिजिनल सेल है, उसके बॉडी के, प्लांट के बॉडी के सारे सेल्स है, वो क्या है? डिप्लॉइड है. तो प्लांट में ग्रोथ होगा बिकॉज ऑफ माइटोसिस. तो प्लांट के बॉडी में भी मियोसिस होने वाला है. वो कब होगा? वो होगा जब वो रिप्रोडक्शन करेगा तब. मतलब प्लांट के बॉडी में जो स्टेमेन है, मेल पार्ट है, वहां पे मियोसिस होगा एंड मेल गैमेट बनेंगे. एंड कार्पेल या फिर पिस्टिल जो फीमेल पार्ट है, वहां पे भी मियोसिस होगा और फीमेल गैमेट्स बनेंगे. ओनली इन दैट पार्ट ऑफ द फ्लावर मियोसिस होगा. मतलब कहाँ होने वाला है प्लांट के बॉडी में मियोसिस? फ्लावर में. एंड वेयर एज द रेस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी क्या होने वाला है? माइटोसिस. ओके. नाउ वन एक्सेप्शनल केस.
अभी तक मैंने बताया सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉयड है 2n है, सब लोगों के सेल्स जो है वो 2n है, उनके पास 2 सेट्स है क्रोमोसोम की। बट कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अलगी, लोअर प्लांट्स की बात कर रही हूं मैं, लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी। सपोज दिस इज एल्गी, ये एल्गी का पिक्चर निकाल रही हूँ मैं, ये एक प्लांट है छोटा सा, ठीक है। इसके बॉडी के कुछ एल्गी के बॉडी सेल्स हमारे क्या होते हैं, डिप्लॉयड। एल्गी के बॉडी सेल्स आर हैप्लॉइड। सो इन केस ऑफ एल्गी, ये जो एल्गी है, एल्गी में हैप्लॉइड सेल कैन मेक 2 हैप्लॉइड सेल्स, और इसको भी माइटोसिस ही बोलेंगे क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है ना। अभी तक हमने माइटोसिस का डेफिनेशन क्या देखा, डिप्लॉयड पेरेंट सेल विल मेक 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। वो ये कौन सी केस में होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिस विल हैपन। बट इन केस ऑफ लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी, क्योंकि उनके बॉडी के सेल ही n है, तो n सेल विल अंडरगो mitosis. Let us revise it again. We have seen 2 types of cell divisions, mitosis and meiosis. Let us see what is mitosis again. Our body cells, जो हमारे body cells है जिनको somatic cells भी बोलते हैं, they undergo mitosis. Mitosis means equational division. In many organisms, diploid cell मतलब 2n, undergoes mitosis and produces 2 diploid cells. Okay, but in few lower plants like algae, haploid cell n undergoes mitosis and produces 2 haploid cells. But maximum organism में, maximum plants and animals में, which cell will undergo mitosis? Diploid cell. Always diploid cell will undergo mitosis. और mitosis को equational division क्यों बोलते हैं? Because one parent cell will produce similar daughter cells. So this is called as equational division. Mitosis, where mitosis helps? Mitosis helps in growth. जैसे मैंने बताया था, अगर आपका ग्रोथ हो रहा है, आपका हाइट बढ़ रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग इन योर बॉडी? माइटोसिस हो रहा है, राइट? और एल्स रिपेयर, व्हेन यू हैव अ इंजुरी, इंजुरी हील कैसे होगी? बिकॉज ऑफ माइटोसिस. नेक्स्ट, मियोसिस. नाउ मियोसिस हमारे सारे बॉडी सेल्स में नहीं होता है, वेयर एज माइटोसिस our all body cells can undergo mitosis, but meiosis जो होता है वो specific part में होता है, and that part is our reproductive tract और gonads. Males में testes and females में ovaries. So meiosis occurs in gonads or you can say reproductive tract cells. Okay, so let us take example. ये एक testis का cell है. It will undergo meiosis and what it will produce? ये जो testis का cell है, for example this is testis cell. How it is? It is diploid and it is producing haploid cells, 4 haploid cells. Okay, these 4 haploid cells are called as gametes. So testis cell का क्या होगा? डिप्लॉइड टेस्टिस सेल का क्या होगा? मियोसिस होगा. और टेस्टिस सेल क्या बनाएगा? मेल गैमेट बनाएगा जिसको स्पर्म बोलेंगे. ओवरी सेल will undergo meiosis and will make haploid egg cell जिसको हम फीमेल गैमेट बोल सकते हैं. तो यहाँ पे मेल गैमेट बनेगा N, यहाँ पे फीमेल गैमेट बनेगा N. सो meiosis का सिग्निफिकेंस क्या है? meiosis helps in gamete formation and gametes helps in sexual reproduction. That we will see. We have already seen how gametes help in sexual reproduction, but we will see it again. See, there is an egg cell. ये ओवरी का सेल है. See, diploid है. टेस्टिस का सेल diploid. Both underwent meiosis. दोनों का meiosis हो गया. Meiosis means reductional division. ओवरी सेल ने क्या बनाया? एग which is haploid N. टेस्टिस सेल ने क्या बनाया? स्पर्म which is haploid.
एंड एग विच इज हैप्लॉइड, स्पर्म विच इज हैप्लॉइड, दोनों का फ्यूजन होगा. फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, एंड दोनों को फ्यूजन का रिजल्ट क्या है? जाइगोट. जाइगोट विल अंडरगो, ये जो जाइगोट सेल है सिंगल, it is a single cell, it is 2n, right? n plus n 2n. So we all started our life as a zygote single cell. हम सब लोग zygote थे जब हमारी लाइफ शुरू हुई. एंड zygote का देखो क्या हुआ, माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन. जाइगोट क्या है? एक 2n सेल है, तो 2n से काफी सारे 2n बने. कब तक हुआ माइटोसिस? जब तक फुल बेबी फॉर्म नहीं हुआ, राइट? सो mitosis is equational division and meiosis is reductional division. Mitosis helps in growth and meiosis helps in gamete formation.